Hello students, today you will start your chapter number 6 from your business studies book, Staffing. Now what do you mean by staffing? Staffing is basically the third function of the management. As of now, we have completed the planning where we have learned what is to be done. Okay, planning says what is to be done. Organizing says how it is to be done. Now what then staffing says? Staffing means putting the right person at the right place with the right qualification. Okay, I'm repeating this line. Putting the right person at the right place with the right qualification. So this is basically manpower planning. Staffing is your manpower planning. आपने decide कर लिया क्या काम होना है, कैसे होगा, पूरा बिजनेस का स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया आपने ऑर्गेनाइजिंग के जरिए. Here comes the third function, staffing, which says कि अब आपने जो डिजाइन प्लान किया है उसको करने के लिए मैन पावर प्लान करिए, रिक्रूट करिए, लोगों को सिलेक्ट करिए और उनसे काम करवाइए. So this is what all staffing is. ठीक है? So staffing is that phase of management which deals with the effective control and use of manpower or human resource. ठीक है? तो human resource को कैसे effectively control करना है, उनको उनके साथ कैसे deal करना है, कैसे काम कराना है, that is all about staffing. ठीक है, जहाँ पे आप प्लान करेंगे कितने लोग चाहिए. आपने अगर डिसाइड कर लिया ये काम है और इस तरीके से काम होगा, तो अब आप डिसाइड करेंगे कितने लोग उसको काम करेंगे. फिर उस लोग जब आपने डिसाइड कर लिया इतने काम है जो है यहाँ पे करेंगे, तो उनको रिक्रूट करना शुरू करेंगे. आप लोगों को बुलाना शुरू करेंगे. देन आप उनको सिलेक्ट करेंगे. सिलेक्ट करने के बाद भी स्टाफिंग का प्रोसेस जो है वो खत्म नहीं होता है. नाउ अगेन यू हैव टू गिव देम द परफेक्ट ट्रेनिंग with which they will be able to do the work effectively and efficiently. Okay, you have to compensate them also. You have to give them the promotion time to time according to their productivity, and you have to maintain that managerial personnel. Okay, this is what all about staffing. Now class, after the meaning of staffing, let's have an importance of staffing. Staffing क्यों जरूरी है? देखो, staffing जैसे हमने बोला लोगों को जॉब पे रखना, ठीक है, तो हमारे लिए स्टाफिंग इसलिए जरूरी है कि स्टाफिंग से क्या होता है, आपको एकदम परफेक्ट जो आपका पर्सन है वो मिल जाता है. ओके, जो भी आपका एम्प्लॉय है वो आपको स्टाफिंग के जरिए ही मिलेगा. स्टाफिंग के जरिए एक सही एम्प्लॉय ढूंढने में आपको मदद मिलती है. ठीक है, अगेन क्यों जरूरी है? इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज स्टाफिंग के जरिए यू आर प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब. ऐसे नहीं कि आपको किसी को भी रिक्रूट कर लेना है. जो आपकी जॉब है, जो जॉब जिस तरीके से की जा रही है, उसके लिए कौन पर्सन सही है, हु इज द राइट पर्सन जो उस काम को कर लेगा, उसी पर्सन को वो काम आपको सौंपना है. ठीक है, इससे क्या होता है, स्टाफिंग के जरिए अगर आप सही लोगों को सही जगह पे रखोगे तो एंटरप्राइज की ग्रोथ होगी. Now, देखो, why we say that enterprise of growth is basically the element of importance of staffing. Why? Because in every organization, capital each and every organization can, obtain. After obtaining the capital, आपके पास resources जो हैं, आपके जो physical आपके resources हैं, like your machinery, your furniture, your building, सबका almost same है. ठीक है, कोई अगर आप कोई मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, वही मशीन दूसरी वाली ऑर्गेनाइजेशन भी लाकर खरीद के ला सकती है. राइट? आपके पास जितनी कैपिटल है वो दूसरा भी लेकर आ सकता है. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा तो भी चलेगा. बट अगर आपकी एंटरप्राइज को आपको ग्रो करवाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो होता है ना, वो होता है आपका स्टाफ. अगर आपके एम्प्लॉयज बहुत अच्छे हैं, no matter what, how much capital you have employed and how much or how much you have invested in your machinery or your furniture or your buildings or what kind of a technology you have, until and unless if you don't have a good staff, you will not be able to grow. So for your growth, a good staff is necessary. Clear? Your growth of the growth of enterprises actually depends on the quality of a staff. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. नाउ क्लास, स्टाफिंग के जरिए क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स. देखो, जैसे आपके फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं ना, लाइक आपका
कोई भी रिसोर्स हो गया, लाइक मशीनरी इज ऑल्सो अ रिसोर्स, एक रिसोर्स है जिसका इस्तेमाल करके कोई काम कर रहे हो, ठीक है। पैसा भी एक रिसोर्स है, फाइनेंस इज ऑल्सो अ रिसोर्स। वैसे ही इंसान, ह्यूमन भी एक रिसोर्स होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर आप एम्प्लॉय वहां उसके अंदर काम कर रहा है तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, वो रिसोर्स है, ठीक है। वो रिसोर्स है, क्यों रिसोर्स है, क्योंकि वो उनको काम करके दे रहा है, उसका इस्तेमाल करके वो अपना काम कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो स्टाफिंग के जरिए हम ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले सारा एनालाइज करेंगे कितनी हमें जगह खाली है, कौन सी जॉब है, किस जॉब पर हमें किस इंसान को बिल्कुल राइट वे में प्लेस करना है। तो स्टाफिंग आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। ऊपर से इट हेल्प्स इन कम्पीटिंग, अगेन आई एम टेलिंग यू कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर आपको कंपटीशन करना है और आपको आगे बढ़ना है तो योर मैन पावर हैज टू बी वेरी गुड, ठीक है। आपकी जो मैन पावर है वो अच्छी होगी तो यू विल विन द कंपटीशन। improve job satisfaction and morale of employees. Now class, अगर आप जब स्टाफिंग का इस्तेमाल करते हो तो आप सही इंसान को सही जॉब देते हो, इससे क्या होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता है और एम्प्लॉइज का जो मोरल है वो बढ़ता है। क्योंकि अगर आप उनको ऐसा काम दे देंगे जो उनको नहीं आता या जो वो करने के केपेबल नहीं है, उनको ना तो अपनी जॉब से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है, ना ही उनका मोरल बूस्ट होगा, ना ही वो काम करने में खुशी दिखाएंगे। और अगर वो खुश नहीं है तो डेफिनेटली वो काम अच्छा नहीं करेंगे, और अगर वो अच्छा नहीं करेंगे तो आपकी बिजनेस जो है वो ग्रो ही नहीं कर सकता। तो स्टाफिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि ये क्या करता है, आपके एम्प्लॉइज का जॉब के लिए सेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है और ऊपर से उनको मोटिवेट करता है। की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। नाउ व्हाट, ये क्या करता है, जो और फंक्शंस हैं, जितने भी काम है बिजनेस के अंदर, उन सब कामों को अगर इफेक्टिवली आपको करना है तो ये उसकी की है, उसकी चाबी है। जैसे चाबी के बिना आप लॉक को खोल नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते। द लॉक इज यूजलेस, यू कैन नॉट यूज द लॉक प्रॉपर्ली इफ यू डोंट हैव द की। सेम गोज विद द स्टाफिंग, स्टाफिंग इज द की ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। अगर आप चाहते हो जितने भी काम है वो बहुत अच्छे से हो तो स्टाफिंग अच्छी होनी चाहिए, स्टाफ अच्छा होना चाहिए, because they are going to implement, they are going to do the work. Now class, staffing as a part of human resources is basically deleted from your syllabus for this year, but एक बार हम roughly थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। Staffing as a part of human resource का मतलब है human resource department जो होता है आपका, उसका एक पार्ट होता है स्टाफिंग मैनेजमेंट। जब स्टाफिंग फंक्शन को एक लार्ज स्केल पे कर रही होती है ना, तब हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी HRM। फॉर एग्जाम्पल आप एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, बहुत ही छोटा सा बिजनेस है, सिंपली आपने क्या किया, अपने लिए जितने भी एक दो आपको एम्प्लॉयज चाहिए वो आपने रख लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक शॉप खोलते हैं बहुत छोटी सी, आपने एक स्वीपर या हाउस कीपर रख लिया, ठीक है, आपने एक सेल्स पर्सन रख लिया, एक आपने कैशियर रख लिया, 2-3 लोगों में आपका काम हो गया, वो आप खुद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, आपके डिपार्टमेंट्स बहुत ज्यादा है, आप एक सिंगल पर्सन इतना सारा काम नहीं हैंडल कर सकते, तो उसके लिए अब आपको एक डिपार्टमेंट हायर करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दिस डिपार्टमेंट बेसिकली डील्स विद द रिसोर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को डील करता है, उनको रिक्रूट करने से लेकर उनको ट्रेनिंग से लेकर, जब तक आपका स्टाफ आपके बिजनेस के अंदर है तब तक ह्यूमन रिसोर्स का इन्वॉल्वमेंट उनके साथ रहता है। ऐसा क्या काम करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं कि आपने जो काम जो है, जितने आपने डिसाइड किए हैं उस काम के अकॉर्डिंगली पहले वो प्लान करेगा कितने लोग चाहिए। लेट्स से उसको 100 चाहिए या 50 चाहिए, ठीक है। अब वो ये प्लान करने के बाद सेकंड स्टेप पे आएगा, सेकंड एक्टिविटी उसको रिक्रूट करना शुरू करेगा। नाउ क्लास, व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूटर? रिक्रूटमेंट इज कॉलिंग द एप्लीकेंट्स टू योर बिजनेस, ठीक है। जो एप्लीकेंट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, आप उन जॉब को, ऐसा तो नहीं जॉब आपने डिफाइन कर लिया और खुद लोग आ जाएंगे, उनको पता चल जाएगा आपकी ऑफिस में क्या जॉब है, नहीं, पहले आपको उनको बुलाना पड़ेगा, चाहे आप कॉल करके बुलाओ, हम आगे डीपली से पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या चीजें किस तरीके से लोगों को बुला सकते हैं। तो पहला काम है रिक्रूटमेंट का, लोगों को बुलाओ एटलीस्ट सबसे पहले, तभी तो वो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। जब लोग आएंगे तो एक, अगर फॉर लेट्स से अगर एक जॉब है और 10 लोग आ गए तो 10 के 10 को सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको एक को ही सिलेक्ट करना है। देयर कम्स द सेकंड फंक्शन इनटू द पिक्चर व्हिच इज सिलेक्शन। अब जब रिक्रूट कर लिया आपने सबको तो उसके बाद अब आप क्या करने लगेंगे, आप सिलेक्ट करने लगेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे एंड देन यू विल प्लेस द पर्सन, द राइट पर्सन इन द राइट प्लेस, ओके।
नाउ थर्ड इज कैरियर ग्रोथ. अगर आपको आपके स्टाफ को कोई भी कैरियर में ग्रोथ चाहिए तो वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ध्यान देता है. वो इन सब चीजों पे बारीकियों में काम करता है कि किस पर्सन को जो है हम उसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल है, उसको हम प्रमोट कर सकते हैं सो दैट उसका कैरियर जो है वो बढ़ेगा. तो आपका कैरियर जो ग्रो होता है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करता है. उनका एनालाइजेशन क्या है, वो they can promote the employee and they can demote them as well. परफॉर्मेंस अप्रेजल, सी अगेन, अगर उनको कोई उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है स्टाफ की तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो उनको अप्रेज देता है. वो अप्रेजमेंट में उसको इंसेंटिव दे सकता है, कोई गिफ्ट दे सकता है, सैलरी इंक्रीमेंट दे सकता है, वट जो भी परफॉर्मेंस अगर उनको लगेगी अच्छी है, सो दे कैन अप्रेज देम. Now, the most important is motivation. Human resource management task is related to the motivation also. जो लोग काम कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करना, ये इनका काम है. Compensation is also an activity of human resource management. What is compensation? Compensation basically is what if any employee working in your organization gets hurt, उनको कोई चोट लग जाती है, उनको कोई नुकसान हो जाता है, उस नुकसान का हर्जाना जो है वो ऑफिस वालों को ही देना पड़ता है अगर वो ऑफिस प्रेमिसेस में हुआ है तो. सो नाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैव टू कॉम्पनसेट. Okay, they will compensate for it. Social security, now class, social security also provided by the human resource management. वो उन लोगों को एक सिक्योरिटी देते हैं. लाइक एक अगर एम्प्लॉय एक नई ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो उसको सोशल होना ही पड़ता है, बिकॉज इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है. अगर वो कंफर्टेबल नहीं हो रहा है तो द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर्टिकुलरली गिव देम द एनवायरनमेंट एंड मेक देम कंफर्टेबल. ओके, सोशल सिक्योरिटी देना भी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही पार्ट है. नाउ अब हम स्टाफिंग प्रोसेस पे आते हैं. स्टाफिंग प्रोसेस जो है वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. This is not a one time task, this is a continuous process. Okay, process is basically what, a continuation of different tasks one by one. Okay, or step by step. सबसे पहले जो प्रोसेस में जो सबसे पहली स्टेप आती है, आप क्या करते हैं स्टाफिंग के लिए, आप एस्टिमेट करते हैं अपने मैन पावर रिक्वायरमेंट्स की. ठीक है, आप एस्टिमेट करेंगे कितने लोग आपको चाहिए. अगर आपका नया बिजनेस है तो आपको सारे ही लोग नहीं चाहिए, बट अगर आपका बिजनेस पुराना है तो आप देखेंगे कितने लोग हैं और कितने और चाहिए. तो आपको बेसिकली यही देखना है जो आपको नए लोग चाहिए वो कितने हैं, चाहे आपकी बिजनेस आपका पुराना है नया है उसके अकॉर्डिंगली. बट नाउ व्हाट यू विल डिसाइड इन बोथ द केसेस द सेम, व्हिच इज कि कितने लोग चाहिए बिजनेस. जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको लेट्स से 10 चाहिए तो अब आप रिक्रूट करना शुरू करेंगे. अब आप उनको कॉल करना शुरू करेंगे या एडवर्टाइजमेंट देंगे, ठीक है, या पोस्टर्स लगाएंगे. आप लोगों को बताएंगे कि आपके यहाँ पे ये जॉब है और उसके अकॉर्डिंगली जो लोग हैं वो आपके पास अप्लाई करेंगे. देयर कम्स अ सिलेक्शन प्रोसेस. जब आप लोग आपके पास आ गए, अब आप क्या करने लगेंगे, उनको सिलेक्ट करेंगे ना. देखो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है. फॉर एग्जांपल 10 लोगों ने ट्राई किया एक जॉब के लिए, तो अब बहुत सारे सीरीज आए हैं आपके पास, रिज्यूमे आए हैं. जो सीरीज एंड रिज्यूमेस आपके पास आए हैं, अब आप क्या करेंगे, उनको पढ़ेंगे और उनको पढ़ के जो है जिन लोगों को लगेगा आपको कि सही क्वालिफिकेशन उनके पास है और क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस भी है, अब आप उनको सिलेक्ट करना शुरू करें. जैसे ही आपने उनको सिलेक्ट किया, देयर कम्स योर प्लेसमेंट. अब आप उनको प्लेसमेंट देंगे, जॉब दे देंगे, उनको प्लेस कर देंगे उनकी सही जगह पे. ठीक है, एंड देन यू विल ओरिएंटेट एंड यू विल डू द ओरिएंटेशन, यू विल इंट्रोड्यूस देम टू देयर वर्क. देयर कम्स अ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. आपने उनको काम दे दिया, बता दिया, अब उनको ट्रेनिंग भी करना आप ही का काम है. ठीक है, ट्रेनिंग करना इज योर टास्क ओनली. कि अब उनको ट्रेन करेंगे, आप उनको सिखाएंगे. कुछ भी आपको नया काम अगर लगता है बिजनेस के अंदर आ रहा है तो यू विल ओनली ट्रेन देम. ठीक है, नेक्स्ट इज योर परफॉर्मेंस अप्रेजल. अगेन एज आई टोल्ड यू, परफॉर्मेंस अप्रेजल, अगर आपको लगेगा किसी स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया तो यू हैव टू अप्रेज देम आल्सो. तो आपको पैसा जो है वो बढ़ा के भी देना है, चाहे इंसेंटिव के रूप में, आप कुछ भी बेनिफिट दे सकते हैं, बट यू हैव टू अप्रेज देम. प्रमोशन या कैरियर प्लानिंग. इफ यू सी एनी एम्प्लॉय इज डेवलपिंग वेरी गुड, so you have to promote them. आपको लगता है एक सीनियर लेवल पे वो काम कर सकता है, तो why you hire a fresh person with you? Just transfer the person or promote the person from junior level to the senior level. Okay, there comes the eighth task, eighth step of this process, which is compensation. Compensation is again the same thing I told you. इसमें आपको क्या करना है, अगर कोई एम्प्लॉय आपके ऑफिस प्रेमिसेस पे उसको कोई नुकसान होता है, कोई चोट लगती है, तो उसका हर्जाना आपको करना है. यू हैव टू कॉम्पनसेट द एम्प्लॉय.
राइट। अब देखो, अब ये जितने भी स्टेप्स हमने पढ़े ना, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। रिक्रूट में मैंने आपको बताया अपॉइंट करना है कैंडिडेट्स को जॉब के लिए, ये एक इस तरीके का काम है कि कैंडिडेट्स को आप अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे डिफाइन करा जाता है इस काम को कि भाई इसमें कुछ नहीं कर रहे, एम्प्लॉयज को ढूंढना है आप, you have to search for the prospective employees, ठीक है, and stimulating them to apply for jobs in an organization, और उनको बढ़ावा देना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आकर इन जॉब के लिए अप्लाई करें। ओके, ये हमारा फर्स्ट टास्क था जो हमने डिटेल में बात करी। नेक्स्ट हमारा टास्क था, नेक्स्ट हमारी स्टेप थी सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब देखो, रिक्रूटमेंट की तो आप बात कर रहे हैं कि रिक्रूट करना है, लोगों को बुलाना है, लेकिन कैसे बुलाओगे, कहाँ से बुलाओगे? तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इंटरनली बुला लो या एक्सटर्नली। इंटरनली मतलब अगर इंटरनली जो है वो सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए पे जो है सूट करता है जो ऑर्गेनाइजेशन पुरानी है। नई ऑर्गेनाइजेशन को सारे बाहर से ही मंगाने पड़ते हैं एम्प्लॉइज, ठीक है, बुलाने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पुरानी है तो इंटरनली भी आप एम्प्लॉइज को जो है जॉब दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक जॉब सीनियर पोस्ट पे चाहिए कोई पर्सन, और आपको लगा कि आपके जूनियर लेवल पर एक पर्सन है जो कि बहुत अच्छा काम करता है, आप उसको वहां ट्रांसफर कर सकते हो, आप उसको प्रमोट कर सकते हो, आप उसको प्रमोट कर दो। इंटरनली आपको वो जगह आपने फिल कर ली। लेकिन अगर आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन न्यू है तो आप इसको कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्सटर्नली। एक्सटर्नल मतलब दोनों ही केस में इम्प्लीमेंट होती है। अगर आपका पुराना ऑर्गेनाइजेशन है तो जरूरी नहीं है कि सारा आपको वहीं से मिले, आपको बाहर से भी लेना पड़ सकता है। और अगर आपकी नई ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको एक्सटर्नली ही लेना पड़ेगा। नो वन इज देयर in your organization, how can you transfer them from one position to the other position? So external is basically calling the staff or the manpower from outside of the business, ठीक है। अब देखो, इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज जो होता है आपका, जैसे मैंने बताया, जॉब के बिजनेस के अंदर ही हम लोग को ट्रांसफर कर देते हैं, एक जॉब से दूसरी जॉब में ट्रांसफर कर देते हैं। देखो इसके एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज इसका ये है कि इट इज इकोनॉमिकल, पैसा बचता है इससे। क्यों पैसा बचता है? क्योंकि जो जॉब खाली है, अगर आप बाहर से किसी को बुलाओगे, आप एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्चा करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद वो लोग आएंगे, उनकी सारी डिटेल्स इकट्ठा करने में टाइम भी वेस्ट होगा, पैसा भी वेस्ट होगा। ओके, तो ये वाला जो इंटरनल है ना, ये बहुत इकोनॉमिकल, बहुत सस्ता हो जाता है। क्यों सस्ता हो जाता है? क्योंकि एक बिजनेस के अंदर से ही आपने एक एम्प्लॉय को दूसरी पोजीशन पे रख दिया, सो दिस इज वेरी इकोनॉमिकल। इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, और इससे क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है ना, उनको मोटिवेशन मिलती है। कैसे मोटिवेशन मिलती है? फॉर एग्जांपल, एक जूनियर पोस्ट पे था, उसको आपने सीनियर पोस्ट पे प्रमोट कर दिया, मोटिवेट होगा, उसको देख के चार लोग और मोटिवेट होंगे और अच्छे से काम करेंगे कि हाँ, अगर इसको प्रमोशन मिल सकती है तो व्हाई नॉट अस, हमें भी मिल सकती है। सो इट विल, द एम्प्लॉयज विल गेट मोटिवेटेड, ठीक है। थ्रू ट्रांसफर एम्प्लॉयज गेट ट्रेनिंग ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ जॉब पोजीशन। अब ट्रांसफर के जरिए क्या होता है, एम्प्लॉयज को जो है ट्रेनिंग भी मिल जाती है जॉब पोजीशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। आप जो है थ्रू ट्रांसफर एम्प्लॉयज गेट ट्रेनिंग ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ जॉब पोजीशन। जॉब पोजीशन के अंदर उनको जो है क्या मिलता है, दे विल ऑल्सो गेट दिस ट्रेनिंग। दिस इज ऑल्सो वन एडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्सिंग। Now इसके see, if one thing has its advantage, it will surely have the drawbacks also, ठीक है। तो ड्रॉबैक्स की अगर हम बात करें तो ड्रॉबैक्स में ये है कि जब हमने इंटरनली लोगों को रिक्रूट कर लिया तो आपका सबसे बड़ी कमी हो जाएगी कि कोई भी फ्रेशर जो नए आइडियाज लेकर आता है बाहर से, वो आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आपके पास जितने एम्प्लॉयज है उनके आइडियाज आपको पता है कितने लिमिटेड है, वो उतने ही आइडियाज दे सकते हैं जो उन तक लिमिटेड है। लेकिन अगर एक नया पर्सन जो आप बाहर से लेते हैं, क्या पता उसमें एक नई क्वालिटी हो, और हर इंसान में एक नई क्वालिटी होती है। तो एक जब न्यू पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है ना, वो एक नई वाइब्स लेकर आता है, वो एक नए आइडियाज लेकर आता है, वो एक नए टैलेंट लेकर आता है। क्योंकि हर इंसान से उनका अपना टैलेंट जुड़ा होता है, अपनी क्वालिटीज जुड़ी होती है, तो यू विल मिस दैट फेज, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट इज देयर विल बी लिमिटेड चॉइस, और आपके पास चॉइस भी बहुत लिमिटेड होगी। अगर आप बाहर से बुलाओगे, 100 लोग एक जॉब के लिए बैठे हैं, आपके लिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 100 में से सिर्फ एक ही चूज करना है, आप बहुत सिंपली एक को चूज कर लेंगे, बाकी को आप अपने साइड ऑप्शन में रख देंगे। बट अगर आपको जरूरी नहीं है तो आप ये तो नहीं कि ज्यादा लोग आए, ज्यादा लोग आपके पास जरूरत ही नहीं है और आप रिक्रूट कर लो, नो यू विल नॉट। आप क्या करेंगे, आप सिर्फ जितने आपको चाहिए उतने आप सिलेक्ट करेंगे और बाकी लोगों की सीवीज रख लेंगे कि हाँ, इन फ्यूचर अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उनको बुला सकते हैं। उस समय लेकिन नहीं करेंगे, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। तो
क्या होता है, आपको चॉइस मिल जाती है बहुत ज्यादा, जितने लोग बाहर से आएंगे आपको उतनी चॉइस मिलेगी। लेकिन बिजनेस के अंदर यू विल नॉट गेट सो मेनी चॉइस, आपके पास लिमिटेड लोग हैं, लिमिटेड चीजें पता है, मतलब आप, आपका माइंड है, माइंड गेम है ये कि आप कितने इंटेलिजेंट है, आप यू नो हाउ मच केपेबल यू आर इन योर थिंकिंग प्रोसेस, कि हाँ ये अंदर जो ये जो पर्सन है इसके अंदर ही कैपेबिलिटी है कि ये काम ये जो सीनियर लेवल का है बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू विल नॉट गेट मेनी चॉइसेस। सी पार्ट इज नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जो नई ऑर्गेनाइजेशन है स्टाफ ही नहीं है, तो इंटरनली कहाँ से सिलेक्ट करो, किसको प्रमोट करो। ओके, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय। और एक और चीज ये भी है कि अगर आप बराबर बार बार एक एम्प्लॉय को अपने काम छोड़ के दूसरे जगह पे ट्रांसफर करेंगे तो इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। कैसे, देखो जो अब एक एम्प्लॉय जो एक काम कंटिन्यूसली करता है ना, एक उसके अंदर फ्लो आ जाता है। आपको भी अगर मैं बोलूँ कि ये चैप्टर आप 5 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, 6 टाइम्स पढ़ लो, तो आप लगातार जिस चीज को करोगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एक एम्प्लॉय जो रोज वही काम कर रहा होता है उसको वो चीजें रट जाती है। Why you don't know the answer always your teachers know? क्यों? क्योंकि वो रोज एक पढ़ा रही है, रोज करवा रही है आपको, तो उनको रट जाता है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, राइट। लेकिन आप एक एम्प्लॉय को, अभी वो कुछ काम कर रहा है, आपने उसको ट्रांसफर कर दिया दूसरी जगह पे, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह पे, अगर फ्रीक्वेंटली अगर आप ट्रांसफर करोगे ना तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि आपने जो काम वो पहले कर रहा था वो छुड़वा के दूसरा काम पे उसको ट्रांसफर कर दिया, वो नया काम सीखेगा, और उसका काम जो उसका छूटा उसके नए किसी और को आप बुलाओगे फिर वो भी सीखेगा, तो नए तरीके से सीखेंगे, नए तरीके से काम करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो लूज होती है। देखो इसके मेथड्स हैं। अब मेथड्स ये है कि या तो ट्रांसफर कर दो आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दो, जरूरी नहीं प्रमोशन ही करनी है, कई बार आप उनके सेम लेवल पे ट्रांसफर भी कर सकते हो, ठीक है। कि आप भाई सेल्स मैनेजर हो, आप इस डिपार्टमेंट में सेल्स करते थे, फॉर एग्जांपल आपके 2-3 लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है जो आप बेचते हो, ठीक है। आपके पास बच्चों के कपड़ों का सेक्शन है, जेंट्स का है, गर्ल्स का है, आपने एक सेल्स मैनेजर को गर्ल्स सेक्शन से जेंट्स सेक्शन में भेज दिया, तो व्हाट यू हैव डन, you have transferred the one person from other you have transferred the one person from one department to other department, ठीक है। या तो ये कर लो या फिर प्रमोट कर दो, कि जूनियर लेवल पे उसको सीनियर लेवल पे प्रमोट कर दो। सो ये दो मेथड है जिससे आप इंटरनल सोर्सेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को पूरा करते हो। नाउ नेक्स्ट कम्स योर एक्सटर्नल रिसोर्सेज। एक्सटर्नल में देखो क्या होता है क्लास, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से जब लोगों को जॉब के लिए बुलाया जाता है वो आपका एक्सटर्नल है, ठीक है। इसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट दो, कुछ भी दो, वो मेथड्स हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन पहले हम इसके जो है मेथड ही पढ़ लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मेथड फर्स्ट। देखो आप जब बाहर से बुलाते हो तो आपका जो पहला मेथड है वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज व्हाट, कि बाहर से बुलाया, लोग आए, सीधा डायरेक्ट आपने उनका इंटरव्यू लिया और रिक्रूट कर लिया, ठीक है। There comes B, casual callers। आप क्या करते हैं, उनको कॉल कर बार बार कॉल करके आप उनको फोन करके बुला रहे हैं कि हमारे पास ये जॉब है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कॉल करके बुला रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वन मेथड। द नेक्स्ट मेथड इज एडवर्टाइजमेंट। या तो आप ऐड दे दो, टीवी में ऐड दे दो, कोई रेडियो में ऐड दे दो, कहीं भी आप ऐड दे सकते हो, ऐड देखकर लोग आपके जॉब में अप्लाई करेंगे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी आप डाल सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज व्हाट, इज द मीडिएटर। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मीडिएटर का काम करता है, यानी कि अगर आपको जॉब चाहिए आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम लिखवा दो, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप भी अपना नाम जैसे लिखवाते हो वैसे ही कंपनीज भी वहां पे जाके अपना नाम लिखवा देंगे, हमें इस तरीके के जो एम्प्लॉयज है वो चाहिए, आपके पास अगर कोई हो तो हमें भेजो। तो मीडिएटर का काम करेगा, वो क्या करेगा, दोनों को मिलवा देगा। तो दैट इज ऑल्सो वन मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिसोर्स। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। नाउ क्लास प्लेसमेंट एजेंसीज होती है बहुत सारी, प्राइवेट कंपनीज होती है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस इन आवर कंट्री इज अ गवर्नमेंट सेक्टर, जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए होता है। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स आर द प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है। ये छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या छोटे छोटे ऑफिसेस खोल लेते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं। लोगों को अगर एम्प्लॉय चाहिए वहां जाके लिखवा देते हैं कि हमें ये एम्प्लॉय चाहिए। लेट्स से वन बिजनेसमैन हैज gone to this placement agencies and he asked that I need one receptionist, I need one salesperson, I need one housekeeper। 3 लोगों को बुला दिया। अब उसको क्या करेगा, अपने जितने लोग अपनी लिस्ट चेक करेगा कि किन किन लोगों ने अप्लाई किया एज हाउसकीपर और एज सेल्स पर्सन और रिसेप्शनिस्ट, फिर वो उनको उनका नंबर देकर उन दोनों को मिला देंगे, ठीक है।
Next method is your campus recruitment. Now, campus recruitment is basically recruiting the person from the colleges. ठीक है, फ्रॉम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, यू नो, जहाँ से भी लोग आप डिप्लोमा कर रहे हैं, आपने बड़े बड़े जो भी यूनिवर्सिटी के साथ लिंक्ड अप है, तो लोगों को पता है कि हाँ इस मुझे एमबीए क्वालिफाइड एम्प्लॉय चाहिए, तो मैं एमबीए कॉलेजेस में जाऊंगा. ठीक है, द पर्सन विल गो, द बिजनेसमैन विल गो टू दैट, टू डायरेक्टली गो टू दैट कैंपस एरिया, जहाँ पे उनको उसी पढ़ाई को करते हुए स्टूडेंट्स मिल जाएंगे और सिंपली वो वहां से जाके उनको रिक्रूट कर सकते हैं. ठीक है, रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉय, ये भी एक मेथड है. ये मेथड क्या है कि आपको कोई एम्प्लॉय चाहिए और आपने किसी दूसरे पर्सन को बोला कि प्लीज मुझे रिकमेंड कर दो, आपकी नजर में कोई है, मुझे एक सेल्स पर्सन चाहिए. डू यू हैव एनी पर्सन यू नो वेरी वेल जो सेल्स स्किल्स जिसकी अच्छी हो? अगर वो आपको रिकमेंड करेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा सेल्स पर्सन है, आप इनको जो है आप हायर कर सकते हो, तो क्या कर रहे हो आप, रिकमेंडेशन पे काम कर रहे हो. तो उन्होंने बोला और आपने रिकमेंडेशन के जरिए उनको जॉब के लिए बुला लिया. लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, बहुत सारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास जाके आपको लेबर मिलते हैं. जो भी लेबर है वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स पे जाके अपना नाम लिखवा देते हैं, तो जो भी लेबर का काम आएगा तो यू कैन इजीली, दे कैन इजीली गेट फ्रॉम द लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स. अगेन एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, अगर आपको टेलीविजन पे कोई ऐड डालना है, वहां पे डाल दीजिए, लोग टीवी देखेंगे, ऐड देखेंगे एंड दे विल अप्लाई. वेब पब्लिशिंग, इंटरनेट पे डाल दीजिए. ठीक है, आप वेबसाइट बनाइए, वेबसाइट पे आप डाल दीजिए, वेबसाइट के थ्रू लोग देखेंगे एंड दे विल अप्लाई. फैक्ट्रीगेट इज ऑल्सो वन मेथड ऑफ रिक्रूटिंग. फैक्ट्रीगेट इज व्हाट, क्या आपने अपने ऑफिस के बाहर जो गेट है वहां पर एक पोस्टर लगा दिया कि ये इस तरीके के एम्प्लॉयज आपको चाहिए, तो वहां से आते जाते हुए लोग जब उनकी नजर पड़ेगी उस पर, they will definitely call you for this. So these all are the methods now. Now let's talk about advantage. कि इसके फायदे क्या हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि फ्रेश टैलेंट मिलता है आपको. ठीक है, a new person with new ideas with a fresh talent, they will come to your business. ठीक है, वाइडर चॉइस, आपको चूज करने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे. अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही अगर आप लेते एम्प्लॉयज तो बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर आप बाहर से ले रहे हो तो आपके पास चॉइस बहुत बढ़ जाएगी. ठीक है, क्वालिफाइड पर्सनल मिलेगा आपको. अब आप बाहर से चूज कर रहे हो, इतने सारे लोगों में से आप एक चूज कर रहे हो, तो आप क्वालिफाइड पर्सन ही चूज करोगे. लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, ऐसे इंसान को आप करोगे जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हो. ठीक है, टेक्नोलॉजी की नॉलेज है तो वो अच्छे से काम करेगा. कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होगा उसके अंदर, कि वो इतने ही कंपटीशन करके स्टार्टिंग में ही आपके बिजनेस के अंदर आया है, सो दे विल हैव दैट कंपटीशन स्पिरिट इन देयर सेल्व्स. देखो, लेकिन इतने फायदे होने के बावजूद भी इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं. सबसे पहले ये कि मॉरल, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनका मॉरल डाउन हो जाता है. कई बार ऐसा होता है कि आप बड़ी पोजीशन में किसी बाहर से किसी को रिक्रूट कर लेते हैं, और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है मे बी दे वर एक्सपेक्टिंग अ प्रमोशन, तो वो थोड़े से डाउन हो जाते हैं, थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं. दूसरा ड्रॉबैक ये है कि बहुत लेंथी प्रोसेस है, इसमें बहुत टाइम लगता है. पहले तो भाई उन्हें कॉल करो, कॉल करने के बाद भी दे विल, इट्स नॉट नेसेसरी आपने कॉल किया वो रेडी हो गए कि हाँ आई विल कम. ऐसा भी हो सकता है कि वो बोले कि नो वी आर ऑलरेडी वर्किंग. ठीक है, so this is lengthy process. The new employees may not adjust in the rules and regulation of the organization. और नया सबसे बड़ा इसका नुकसान ये है कि वो नया एम्प्लॉय जब एक ऑर्गेनाइजेशन में आता है ना, तो वो नए रूल्स नए रेगुलेशन के साथ पता नहीं एडजस्ट करेगा नहीं करेगा. ओके, तो ये प्रॉब्लम भी आ जाती है, आपको ये भी फेस करना पड़ता है कि मे बी दे विल नॉट एडजस्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन. इट इज एक्सपेंसिव, ये बहुत खर्चीला होता है. टीवी में ऐड देने लगोगे तो बहुत पैसा लगेगा. ठीक है, आप अगर कोई किसी कॉलेज में जाकर भी किसी लोगों को बुलाओगे तो पूरा सेटअप करना पड़ता है, आपको इसमें भी पैसा खर्चा करना पड़ेगा. तो दिस इज बेसिकली एन एक्सपेंसिव टास्क. ओके, सो हमने मेथड एंड ये सारी चीजें कर ली है. विद दिस वी कम टू एन एंड फॉर दिस चैप्टर. नेक्स्ट विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट क्लास.